So these two girls, and the elder one was 13, 14, the younger one was 8. They were exploited by their father. है ना. अब 18 साल में आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिए. 18 साल सबसे क्रूशियल एज होती है. उस समय वो टीनेजर है, उस समय वो रिबेल है बच्चा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. और अब उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी माँ का पैसा यूज़ करेगा तो वो क्रिमिनल बन जाता है ऑटोमेटिकली. अब 35 to 40 के बीच में फीमेल कि मैं 7 से 10 रुपये लेती हूँ, जिसमें से बचा के आई गेट 3 to 4 रुपीज़. अब उस 3-4 रुपये में शी विल बाय चीप मेकअप प्रोडक्ट्स, she will buy sanitary products also, she's going to take care of her health also. गंगूबाई मूवी देखी है? उसमें एक सीन होता है जिसमें वो बच्चों को एडमिशन कराने लेके जाती है और वहाँ पर मना कर देते हैं. वैसे रियल लाइफ में भी रिसर्च के टाइम पे आपने सुना है, देखा है? एज आई वॉज टेलिंग यू, रत्नवाला केस है हमारा, उसमें द कंसर्न वॉज सेम. उसमें दिस वॉज द बेसिक इशू दैट जो फीमेल्स आर इन टू दिस काइंड ऑफ सिचुएशन, देयर किड्स आर नॉट someone or are not the ones who should face discrimination and who should be denied or deprived of right to education. Okay, that's the only hope these women they have. Okay, their kids will do better, probably they'll have a dignified life once the kids will grow up. So if we as society or lawmakers, we do not provide them ample opportunities to get good education, that's the last hope that we are killing. So the Supreme Court basically laid the guidelines, certain guidelines, that even when under trial prisoners हैं जो, even the kids who are from this kind of background, right to education is a fundamental right, and we cannot deprive that right to any child for that matter, irrespective of their background. So yes, I'm not denying that these kind of things, they must happening even nowadays, even till today these kind of things must be happening. But as far as law is concerned, we are very sound in this regard. No discrimination, no deprivation, right to education is clearly made a fundamental right. So this is what law can do basically. कौन सा आर्टिकल है वो? आर्टिकल कौन सा आर्टिकल? राइट टू एजुकेशन इज मेड पार्ट ऑफ राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21. दिस आई नो. ओके. हाँ जी. अच्छा, यू स्माइल एंड आस्क. नो, मैं कहा ये तो वाइवा हो गया मेरा. हाँ. सो या, it was extension of right to life. That right to life includes right to education, right to have a dignified livelihood also. हाँ जी. तो मैम आप PhD करा आपने ना, तो आप अभी नाम के आगे डॉक्टर लगाते हैं, तो वाई मिलिट्री लोगों को प्रोफेसर्स जो एजुकेशन में इन्हीं को अलाउड है? क्योंकि मैंने बाकी सब देखे हैं जो चार्टर्ड अकाउंटेंसी करते हैं वो भी CA लगा लेते हैं, बट वो लीगलाइज नहीं है. जो शेफ़्स हैं वो भी नाम के आगे शेफ़ लगाते हैं, लीगलाइज नहीं है. ये कौन कैसे डिसाइड करता है? डॉक्टर्स and we as professors and army personnel also, we are called professionals. Okay, and what is the difference between a profession and an occupation? Occupation is something which you do for your livelihood. Profession is something wherein you have skills, you have education, and more than that, you are part of a body which governs and regulates you. Okay, जैसे if I am a professor, I am regulated by UGC. Okay, if you are a doctor, you are regulated by Indian Medical Association. If you are an advocate, because advocates also put this title advocate, Sachin Verma for example. So if you are an advocate, you are governed by BCI, Bar Council of India. Similarly, army is governed by Indian Armed Forces Act ke through. So all these acts, all these bodies are the apex bodies. They create rules and they regulate us. So professionals are basically governed by a professional apex body and a legislation. So it is that law which creates this body which regulates us, and that body tells us which kind of title we can use, what kind of uniform we have to wear, what kind of remuneration we can ask, what kind of services we can do. Every act, every profile is basically created, regulated by them. So it is that body which defines what is going to be the periphery of my profession and the title I can use, and the title which is legal or it is not legal. Okay.
what I believe is that whenever we talk about offences, whenever we talk about wrongs for that matter, I have been repeatedly telling this to my students also. Okay, Indian legal system again is based on something which tries to address problems very superficially. ओके हम हमेशा सिम्टम्स पे बात करते रहते हैं एंड क्रिमिनोलॉजी इज़ वन स्पेशलाइज्ड फील्ड विच कैन टेक अस बियॉन्ड सिम्टम्स, विच कैन टेक अस टू द कॉजेज, बिकॉज इट क्रिमिनोलॉजी इज़ इटियोलॉजी ऑफ क्राइम, कॉजेज ऑफ क्राइम, द कौन से बैक्टीरियाज एंड वायरसेस हैं बेसिकली जो निकल के आ रहे हैं कि हमको दिख ये रहा है. तो प्रोस्टिट्यूशन हमको दिख रहा है, उसके रीजंस, उसके कॉजेज, वो कहाँ से पैदा हुआ, वो कैसे इवॉल्व हुआ, उसको प्रेजेंट फॉर्मेट में किस किस सिचुएशन से गुजर के आया है, वो ये हम नहीं डिस्कस करते. ओके, सो द गुड थिंग इज़ कि डोंट आस्क मी द 3 लेजिस्लेशंस का नाम, प्लीज़ एडिट कर देना इसको. द 3 लेजिस्लेशंस विच वी आर कमिंग अप विद, साक्ष्य संहिता है हमारी, और क्या है, न्याय संहिता है, और नागरिक सुरक्षा संहिता है. ओके, तीनों जो हमारे न्यू लेजिस्लेशंस आ रहे हैं, these are based upon, which is a very pleasant surprise, these are based upon criminological understanding of crime. These are based upon contemporary development of society. Okay, तो अगर इस तरह की सिचुएशन में हम, चाहे वो प्रोस्टिट्यूशन है, ट्रैफिकिंग है, अगर हम माइंडसेट समझ लें एंड इफ़ वी स्टार्ट अंडरस्टैंडिंग द सोसाइटी, तो डेफिनेटली क्राइम को एड्रेस करना वुड बी ईजियर फॉर अस. सो दिस इज़ समथिंग विच इज़, अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल दूँ, हमने बनाया ट्रांसजेंडर्स प्रोटेक्शन एक्ट, बहुत नया लेजिस्लेशन है, 2019 में आया है. हमने बना लिया ट्रांसजेंडर प्रोटेक्शन एक्ट. अब जब ये डिबेट्स हो रही थी, जब ड्राफ्ट बन रहे थे, कुछ जब इसके ऊपर काम हो रहा था, हमने किसी ट्रांसजेंडर को स्टेक होल्डर नहीं बनाया, हमने किसी ट्रांसजेंडर से पूछा नहीं. देयर आर लॉट मेनी एक्टिविस्ट्स हु आर वर्किंग इन दिस फील्ड सिंस क्वाइट अ लॉन्ग टाइम, दे कुड हैव मेड पार्ट ऑफ देम. Are you getting my point? तो क्या हुआ, जब हमने ये ट्रांसजेंडर्स एक्ट बनाया, इमीडिएटली आफ्टर दैट, एंड आई एम नॉट गोइंग टू नेम द मिनिस्टर, बट ही सेड कि कुछ तो करना था, तो वी हैव गिवन दिस टू देम. ओके, एंड समबडी आस्क्ड कि होते कौन है ट्रांसजेंडर, तो ही सेड यही जो हिजराज एंड किन्नर्स होते हैं. Are you understanding my point? You are not aware about the anatomy. You are not aware about the body type. You are not aware about how many kinds of body types are there. Transsexuals are there, transgenders are there, their body types, their organs, their deformity or non-deformity, whatever we are talking about. You're not aware of that. And you have made a law for them, which talks about sex reassignment surgeries also, which talks about how the doctor is going to inspect them. So definitely flaws होंगे. ओके, इसी तरह से जब हम प्रोस्टिट्यूट्स के बारे में बात करते हैं, आप उनकी हेल्थ के बारे में बात करते हैं, आप एड्स के बारे में बात करते हैं, यू आर नॉट टॉकिंग अबाउट दोज बेसिक. आई पर्सनली इंटरव्यूड अ फीमेल ड्यूरिंग माई PhD, GB Road, and she told me कि I was charging, if I remember it correctly, somewhere between 7 to 10 rupees per client. Only 7 to 10 rupees, she told me, कि मैं 7 से 10 रुपए लेती हूँ क्लाइंट के. शी वॉज 35 to 40 के बीच में, अ फीमेल, कि मैं 7 से 10 रुपए लेती हूँ, जिसमें से बचा के आई गेट 3 to 4 रुपीज़. अब उस 3-4 रुपए में शी विल बाय चीप मेकअप प्रोडक्ट्स, she will buy sanitary products also, she's going to take care of her health also, and because the amount which is being charged is very less, she needed to cater at that time, she needed to cater many, like a lot of men in one night. So are you understanding? आपके पास पैसा नहीं है, आप अपनी बॉडी पे, अपने हेल्थ पे खर्च करने के लिए पैसा नहीं है, उसके बाद आपका एक्सप्लॉयटेशन क्वाइट अ नंबर ऑफ टाइम हो रहा है क्योंकि आप पैसे कम ले रहे हो. एंड व्हेन वी टॉक अबाउट, सी इट्स रियलिटी, व्हेन यू टॉक अबाउट अ क्लाइंट who is giving you 7 to 10 rupees, understand his hygiene level, understand how उसका माइंडसेट, उसका अग्रेशन, उसका हाइजीन लेवल, उसकी डिमांड्स. आर यू गेटिंग माई पॉइंट? हाउ हीनस, हाउ डर्टी, हाउ बैड इट इज़ फॉर एनी ह्यूमन बीइंग टू बी इन दैट सिचुएशन. सो हम चीज़ों को बहुत सुपरफिशियली देखते हैं, और बहुत सारे लोग हैं जो जानते हैं रियलिटी, बट व्हेन इट कम्स टू लॉ मेकिंग, व्हेन इट कम्स टू हाउ द अथॉरिटीज़ मस्ट फंक्शन, फिर वो सब वाइट वॉश हो जाता है सडनली. फिर वो बहुत ही
बहुत सुपरफिशियल लेवल पे वी आर एड्रेसिंग द प्रॉब्लम्स, वी आर नॉट गोइंग डीप, वी आर नॉट अंडरस्टैंडिंग एंड वी आर नॉट टैकलिंग दैट सिचुएशन इन अ कॉम्प्रिहेंसिव वे कि चारों तरफ से समझते हैं और फिर एक आंसर लेके आते हैं जो सारी प्रॉब्लम्स को जो उसके आसपास है उसको एक सोल्यूशन एड्रेस करते हैं. हम वो नहीं करते हैं. तो वहाँ पर जब आपने इंटरव्यू लिया था, वीडियोग्राफिक इंटरव्यू था वो? नहीं. आई कंप्लीटेड माई PhD आई गेस 11 years बैक एंड उससे भी 2009 में आई वेंट टू टेक इंटरव्यूज़. आई वॉज एनरोल्ड इन 2008. So I went somewhere in 2009 to take my interviews. So it was quite long back. So no, it was not. And I don't think कि वो allow भी करते मुझे. तो it was a normal ऐसे pen paper लेके I noted down my answers and that's it. उसके लिए भी उनका रिएक्शन कैसे था? It was something, you know, which haunts me till now. This was obviously bad. I'm not saying that this was something very pleasant. This was obviously bad. But this lady was still in 35, 40. So I went to an NGO also. And there was these two girls. And I cannot forget about those two girls. So these two girls, and the elder one was 13, 14. The younger one was 8. They were exploited by their father. Father was in the prison that time. They were into a rehabilitation center, and then they were exploited by other men also. And the elder one, she decided to run away, and then she approached some police station, and then the younger one was rescued. So that is how they ended up in that rehabilitation center. So I went there, and you know, the kind of people we are, we you know, think that we'll talk politely and देखते हैं कैसे, will be sensitive, will be, you know, will be giving them their time to cope up. So I went there and I'm like, so what's your routine, what do you do since morning till evening, क्या क्या करते हो आप लोग? तो दिस यंगर वन टोल्ड मी, छोटे वाली 8-9 साल की, वो कहती है कि दीदी सीधा सीधा पूछो ना क्या क्या हुआ था, कैसे कैसे हुआ था. शी वॉज लाइक, आई आर गेटिंग माई पॉइंट. शी इज़ इन टू दैट. सो 8-year-old गर्ल, शी इज़ टेलिंग मी कि मतलब आप क्यों you're रनिंग अराउंड द बुश, जस्ट आस्क नो कि क्या हुआ था क्या नहीं हुआ था. तो देन आई सेड नहीं ऐसा कुछ नहीं है, इट्स देयर ऑन पेपर, योर स्टेटमेंट इज़ ऑल्सो देयर, आई एम जस्ट हेयर टू स्पेंड सम टाइम विद यू एंड टू नो मोर अबाउट यू पीपल. तो कहती है नहीं मैं बता देती हूँ फिर भी आपको. दे सो यूज टू नो एंड सो वो एक मर जाती है ना अंदर चीज़ के अब ये ड्रामा उनमा मत करो, अब ये सेंसिटाइजेशन और ये इतना सेंसिटिव होना मत करो आप. अच्छा मेरे पापा ये करते थे, मेरे साथ ऐसे किया ऐसे किया ऐसे किया, एंड शी टोल्ड मी एवरीथिंग एंड सो एफर्टलेसली ना, ऐसे जैसे मैकेनिकली आप बोल रहे होते हो. एंड शी यूज दोज वर्ड्स इन हिंदी वेरी वेरी ऐसे एफर्टलेसली, बिना शर्म के, बिना खट सब कुछ बता दिया. यहाँ पे ऐसे करते थे, वहाँ पे ऐसे करते थे. एंड देन दिस एल्डर वन, शी टोल्ड मी कि मेरे को कुछ VLCC था शायद, VLCC भेजा जा रहा है ट्रेनिंग के लिए शाम को, ब्यूटी पार्लर ब्यूटिशियन की कुछ ट्रेनिंग के लिए भेजा जा रहा है. तो अगर आप बोलेंगे इनको तो दे विल गिव मी अ किट ऑल्सो. तो वो किट से मैं घर पे भी यहाँ पे भी मतलब अपने सेंटर पे भी प्रैक्टिस कर लूँगी. सो देन आई केम टू नो आफ्टर आई गेस 2-3 months that the elder one, she ran away with a boy there in that center. So this lady who told me, she was the in charge, the warden of that center. So she's like, you cannot give them a good lifestyle. She ran away with something who is definitely going to exploit her, and I know that. So then you know you that is the reality. Then you understand that there are things beyond your control and कितना कुछ करना है तो ये situation actually handle होगी. इससे क्या बोलना चाहिए उसको, प्रॉपर क्या होगा. एक लॉ है जिसने आपकी हेल्प की, एक अथॉरिटी है जिसने आपको रेस्क्यू किया, एक रिहैबिलिटेशन सेंटर है जहाँ पे आप रह रहे हो. पर क्या एक्चुअली आप मेन स्ट्रीम सोसाइटी का पार्ट कभी भी बन पाओगे? आप नहीं बन पा रहे कभी भी. एंड दिस एल्डर वन, शी टोल्ड मी, कुर्सी बुनने से, मेकअप सीख लेने से लाइफ बनेगी मेरी. मैंने कहा बेटा तो करना क्या है, किससे बनेगी लाइफ? ख़त्म ही होगी थी ना, कुछ तो बनेगी. ये नहीं चाहिए मेरे को. यू नो, यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या चाहिए फिर तुमको, एंड यू नीड टू समहाउ यू नो
आई डोंट नो, मतलब आप हर डिमांड नहीं पूरी कर सकते, बट सम हाउ यू नीड टू अंडरस्टैंड कि क्या बेटर हो सकता है, और वो नहीं समझ सकते हैं आप जब तक आप इस लेवल का इंटरेक्शन लोगों के साथ नहीं करते, जब तक आपको एक्चुअली नहीं पता चलता किस किस तरह के इन्फेक्शंस दीज वुमेन आर कैरिंग. वी ओनली टॉक अबाउट एड्स, वी ओनली टॉक अबाउट diseases which are being talked about at various podiums, but there are a hell lot of other diseases which are there. They are suffering with it, and they are being stuffed with tampons, because they want them to be available during their menstruation cycle also. So there are a lot of things which are happening and nobody talks about them. So मुझे लगता है बहुत सुपरफिशियल लेवल पे हम लोग बात करते हैं, और एजेंसी जो लॉ मेकिंग एजेंसीज़ हैं उनमें फ्लॉ ये है कि वो स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व नहीं करते. हम बोलते हैं कि समवन हु इज़ लिविंग ऑन द अर्निंग ऑफ लाइवलीहुड इज़ कमिटिंग अ क्राइम, इज़ एन ऑफेंस बेसिकली. सो नाउ अंडरस्टैंड कि ऑब्जेक्टिव क्या था इस चीज़ का, कि जो एक्सप्लॉयटर्स हैं, जो एक फ़ीमेल की बॉडी सेल करके उससे पैसा कमा रहे हैं, वो एक्सप्लॉयटर्स उस पैसे पे अगर जी रहे हैं तो वो एक ऑफेंस कमिट कर रहे हैं. समवन लिविंग ऑन द लाइवलीहुड आउट ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन जो अर्निंग आ रही है उस पे इज़ कमिटिंग एन ऑफेंस. डन. ये वाला एंगल हमको समझ में आता है. अब आप इसका एक दूसरा पर्सपेक्टिव समझेंगे कि एक प्रॉस्टिट्यूट है, उसका बेटा है, उसकी बेटी है, 18 साल के जब तक हैं तब तक वो अपनी मदर की अर्निंग पर जी सकते हैं. 18 साल के बाद अपनी माँ का ही पैसा अगर वो यूज़ करते हैं तो वो क्रिमिनल्स हैं. ओके. अब आप समझिए कि 18 साल में बच्चे क्या कर रहे होते हैं, 12th कर रहे होते हैं, है ना. और इनका बैकग्राउंड क्या है, ना इनके पास एक्सेसिव मनी है, ना इनके पास उस तरह का स्टेबल फैमिली स्ट्रक्चर है, ना इनके पास पैसा है कि इन्होंने कहीं पे हायर एजुकेशन की फंडिंग करके रख रखी हो. इनके पास कुछ नहीं है ना. अब 18 साल में आप अपने बच्चे को छोड़ दीजिए. 18 साल सबसे क्रूशियल एज होती है. उस समय वो टीनेजर है, उस समय वो रिबेल है बच्चा. आर यू गेटिंग माई पॉइंट. और अब उसके पास पैसा नहीं है, क्योंकि अगर वो अपनी माँ का पैसा यूज़ करेगा तो वो क्रिमिनल बन जाता है ऑटोमेटिकली. तो अब वो क्या करेगा. 12वीं का बच्चे के पास क्या डिग्निफाइड करियर ऑप्शंस हैं इंडिया में, आप बताइए. वो या तो क्रिमिनल बनेगा, या फिर मुझे नहीं लगता 12th के बाद इस बैकग्राउंड से आया बच्चा एक एक्स्ट्राऑर्डिनरी ज़ील हो. तो आई एम नॉट डिनाइंग कि कुछ नहीं अचीव कर सकता, बट वो चांसेस हैं 1% बच्चों के पास, 2% बच्चों के पास जो शायद लड़ जाएं और IAS भी बन जाए, PCS भी बन जाए, कुछ के कुछ बन जाए, मजदूरी कर लें. ज़्यादातर इस बैकग्राउंड से निकले हुए बच्चे जिनको इतना साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है, जिन्होंने देखा भी गंद है अपने चारों तरफ, उनके लिए वो कितने प्रोन हैं टू डिविएट फ्रॉम लॉ, है ना. तो फिर आप जब ये बोलते हैं कि लिविंग ऑन लाइवलीहुड विच हैज़ बीन अर्न आउट ऑफ प्रॉस्टिट्यूशन, इज़ इट सो डिफ़िकल्ट टू अंडरस्टैंड. आप उसको डिवाइड कर दो ना. जस्ट ट्राई टू एड्रेस दिस प्रॉब्लम दैट देयर वुड बी किड्स 17-18 ईयर्स ओल्ड किड्स, और वो उनके पास मदर फादर तो होते ही नहीं. उनके पास अगर मदर का पैसा यूज़ करने की भी चॉइस नहीं रहती है तो वो दे आर ऑन देयर ओन एट 18. एंड आज की लाइफस्टाइल में जहाँ पे एम्प्लॉयमेंट नहीं है, जहाँ पे एजुकेशन 12वीं के बाद सीरियस एजुकेशन शुरू होती है, दे नीड एटलीस्ट 4 more years टू गेट स्टेबल जॉब. तो बस इसको आप एड्रेस ही नहीं करना चाहते. तो जब सेक्स वर्कर्स के किड्स होते हैं तो फीमेल्स को वहीं पर रख लेते हैं फोर्सफुली. Not always, but yes, most of the times. There are women, see, women are trying really hard to give their kids a better future. So there are a fair number of women who are able to send their girls away. There are agencies also, there are NGOs also who are working in this direction. They take the kids in their custody and give them better a place to get education from. And with girls, they definitely are more particular कि उनको वहाँ से निकाला जाए. But having said that, there are large number of girls who are absorbed also there. There are large number of boys who end up being pimps, who end up being छोटे level के criminals. So all that is happening. And there is no database also. There is no, they exist. ये भी तो कहीं पे होना चाहिए ना, that they exist. They are born. They have this identity card. They have this Aadhaar card. They don't exist. उनका कोई लीगल स्टेटस नहीं है. अभी बोला गया है कि आप उनका डेटा तैयार कीजिए, आप उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स इंश्योर कीजिए कि उनको मिलें. आप उनके पेरेंट्स के नाम पे सिर्फ एक नाम चलेगा, उसके हिसाब से उनके बर्थ सर्टिफिकेट्स लेके आइए.
there are lot many issues. Nobody has time or nobody has this as their priority in that kind of environment. So people are being born and they are just there. ठीक है, लास्ट क्वेश्चन। मिनिस्टर वहाँ पर अपॉइंट हो जाते हैं यूनियन कैबिनेट में। अब आपके हिसाब से इस इशू को, ट्रैफिकिंग एज अ होल को अगर आपको डील करना है, See, I would definitely not deal trafficking as a whole. ठीक है, because trafficking, as I told you, is transnational concept also, and then for bonded labor and for a lot of things trafficking is happening, very vast level पे trafficking is happening. But let me just restrict myself to answer, if I have to deal trafficking for prostitution, what would be my way of tackling the situation. So for me, the only thing which can be a rescue gate for these women is acceptance in the society and giving them an alternative dignified way of livelihood, of earning the livelihood. Okay, so I would definitely focus upon, one, to make the clients accountable along with pimps and along with the traffickers. So my focus would be, instead of criminalizing or making prostitution, the activity of prostitution, an offense, I would rather handle and make offense out of the act which has been done by traffickers, which has been done by the client who has hired a body and paid for that. Okay, so my prime focus would be, उसको हम offense बोलें, जो अपनी body बेच रही है फीमेल वाया prostitution, उसको हम, I'm not saying that उसको हम clean chit दे दें. What I'm saying is my focus would be on the traffickers and on the clients rather than on these females who are already exploited and already victims in this situation. That is first point. Second is, I definitely would, जो हम अभी कर भी रहे हैं ड्राफ्ट बिल में, केयर एंड रिहैबिलिटेशन इज़ समथिंग विच वी मस्ट लुक फॉरवर्ड टू, वन. बट जब हम रिहैबिलिटेशन की बात करते हैं ना, तो उसमें वोकेशनल कोर्सेज होने चाहिए, उसमें जनरेटिंग द स्किल्स होने चाहिए, उसमें आप उनको उनकी चॉइस पूछ के, उनको उनका वे ऑफ लिविंग समझ के एक ऑल्टरनेटिव लाइवलीहुड अर्न करने का स्कोप प्रोवाइड कीजिए. हर कोई कुर्सी बुन लेगा, हर कोई पार्लर का कोर्स कर लेगा, और हर कोई का वो नैक है या वो ब्लेंड ऑफ माइंड है, ये लेके एक डंडे से सबको चलाना इज़ नॉट अ सोल्यूशन. सो यू नीड टू अंडरस्टैंड व्हाट एग्जैक्टली दे वांट टू डू विद देयर लाइफ. इफ नॉट दिस, वी मस्ट ऑफर देम, वी मस्ट क्रिएट एन अपॉर्चुनिटी वेयर देयर लाइफ वुड बी बेटर. Okay, so that would definitely help us in creating a situation where they are not coming back to that dirt. Okay, then society में you need to create an awareness. You need to create that acceptance, and that acceptance can be there when these women are placed by the agencies in a position जो एक respectful position है, जो एक dignified position है, और वो उसके लिए education और employment दो चीज़ें हैं जो बच्चों के लिए, females के लिए generate करना ज़रूरी है. So this is, as a lawmaker, what we can at least focus upon. Then if you go back to the society में creating an understanding कि discrimination क्या है, creating an understanding कि आप किस human body को ज़्यादा value देते हैं और किस human body को आप कम value देते हैं. हम तो कहते हैं right of nourishment भी equally नहीं मिल रहा है. Boys को दूध पिला देती हैं माएँ, और लड़कियों को कहती हैं तुम दूध पी के क्या करोगी, तुम रोटी सब्ज़ी खा लो और अकेले. So that is how we value a body type, a gender, a sex basically. So that kind of equality we need to create, that kind of equity and fair treatment we need to create, so that आप ये कॉन्सेप्ट कि आप किसी को बेच खरीद सकते हो, ये लड़कियों के लिए ही आपके दिमाग में क्यों खुराफात आती है ना, बिकॉज दैट माइंड सेट. सो वी नीड टू टारगेट दैट माइंड सेट फर्स्ट ऑफ ऑल फ्रॉम सोसाइटी के पॉइंट ऑफ व्यू. तो अगर दोनों पे हम साइमल्टेनियसली काम करेंगे ना, तो एक वो बनता है. और सबसे इम्पॉर्टेंट क्या है, जब आप स्टेक होल्डर्स को इन्वॉल्व करते हो ना, जब आप लेट्स से पॉलिसी मेकिंग में आप प्रोस्टिट्यूट्स को या women who are into prostitution, who were trafficked and are in a position right now to talk about it, when you involve these kind of people in the process of law making or policies, एक ट्रस्ट फैक्टर बिल्ड होता है. ओके, एक एक्सेप्टेंस ईजी हो जाता है. ये नहीं होता कि ये पार्लियामेंट में बैठ के कुछ भी लॉ बना देते हैं, हमारे ऊपर थोप देते हैं और अब हम भुगते. फिर ये होता है दिस इज़ मेड बाय अस, फॉर अस, एंड व्हेन यू बिलीव दैट दिस इज़ मेड फॉर अस, बाय अस, देयर इज़
a lot of acceptance जो automatically create होती है ना, and it simplifies the synchronization of law in the society and understanding how the society would understand it. It would be smooth, it would be better. So all of that together can create a better situation. I'm not saying कि ख़त्म हो जाएगा prostitution or trafficking. It can at least address the real problem to some extent. So that's it. उस कैमरे में देख के ओके एक्सपीरियंस कैसा था? ओके सो या एक्सपीरियंस इज़ गुड. मेरे को अब इधर देखने का, अब रुक जाओ दोबारा से शुरू करती हूँ, ठीक है. एक्सपीरियंस इज़ गुड. इट वाज माय फर्स्ट एक्सपीरियंस टू रिकॉर्ड अ पॉडकास्ट. द क्वेश्चंस आई थॉट वाज वेरी रेलेवेंट एंड सिग्निफिकेंट एंड आई गेस आई वाज एबल टू एड्रेस देम राइटली एंड एडिक्वेटली. सो थैंक यू सो मच. थैंक यू सो मच मैम.